3 لاکھ پاکستانی نوجوان آن لائن ڈیجیٹل ٹریننگ لیں گے۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو ICT ٹریننگ کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ کہا ہواوے کے ICT ٹریننگ پروگرام سے نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ چینی کمپنی ہواوے ٹیکنالوجیز پاکستان میں جدید تربیتی پروگرام شروع کرے گی۔ کراچی میں چوری ڈکیتی بھتہ خوری کی وارداتیں کم نہ ہوئیں۔ فروری میں شہری 3,500 سے زائد موٹر سائیکلوں اور 195 کاروں سے محروم ہوئے۔ فروری کے دوران شہریوں سے 1402 موبائل چھین لیے گئے۔ مختلف واقعات میں 36 افراد قتل ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب مسلح شخص کو گولی مار دی گئی۔ سیکرٹ سروس نے مشکوک مسلح شخص پر فائرنگ کی، زخمی اسپتال منتقل۔ فائرنگ کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص خودکشی کے ارادے سے موجود ہے۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے 252 رنز ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ کیویز کی جانب سے ڈیرل مچل 63 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ کیوی بیٹرز بھارتی اسپنرز کے جال میں پھنس گئے۔ ول ینگ 15، ولیمسن 11، ٹام لیٹم 14 رنز پر وکٹ دے کر چل دیے۔ رمضان میں مہنگائی کا طوفان، شہری پریشان، سستے بازار رہ گئے برائے نام۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں مرغی کے گوشت کی قیمت 950 روپے تک پہنچ گئی۔ لاہور، فیصل آباد میں بھی مرغی کی اونچی اڑان۔ کراچی میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ سیالکوٹ، چشتیاں، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو۔ بلوچستان میں سستے رمضان بازار بھی مہنگائی بانٹنے لگے۔ رمضان المبارک میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف کورنگی میں احتجاج۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک کے دونوں ٹریک بند کر دیے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا ٹاؤن چیئرمین کورنگی کے الیکٹرک کے نمائندے کو بلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مذاکرات کریں، بجلی پانی کی فراہمی یقینی بنائیں، پھر احتجاج ختم کریں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا رمضان میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع کا اعلان۔ 15 رمضان سے پیپلز بس سروس رات 1 بجے تک چلے گی۔ نئے اوقات کا اطلاق روٹ نمبر 1 سے 4، 9، 10 اور EV1 پر ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو درپیش مشکلات سمجھتے ہیں۔ یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ خریداری کے بعد محفوظ طریقے سے گھر پہنچ سکیں۔ وفاقی حکومت کا پورٹ قاسم کی زمین اونے پونے داموں فروخت کرنے کا نوٹس، تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے زمین کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ARY نیوز نے گوادر ایئرپورٹ سے متعلق انٹرنیشنل فیک نیوز بے نقاب کر دی۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے بھی ہیں، مسافر بھی، اور وہ تمام جدید سہولتیں بھی جو دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن پاک چین دوستی کے بڑے نشان گوادر ایئرپورٹ کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کے دشمن ہیں پریشان۔ عالمی میڈیا میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی اخبارات، امریکی اور یورپی ویب سائٹس نے مکھی پر مکھی بٹھا دی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے گوادر تک آنے کی زحمت کیے بغیر خبر جاری کی کہ گوادر ایئرپورٹ خالی ہے، مسافر موجود ہیں نہ ہی طیارے۔ بھارتی اخبارات نے ہیڈ لائنز تبدیل کی، نہ اسکرپٹ ایڈٹ کرنے کی زحمت کی، خبر ویسے ہی کاپی پیسٹ کر دی۔ ARY کے پروگرام سرعام کے اینکر اقرار الحسن نے حقائق جاننے کے لیے نیو گوادر ایئرپورٹ کا دورہ کیا تو جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔ حقائق جھوٹی خبروں کے برعکس نکلے۔ گوادر ایئرپورٹ پر 1 ماہ کے دوران بین الاقوامی پروازوں سمیت 42 فلائٹس آپریٹ ہوئی، 1537 مسافروں نے سفر کیا۔ بنوں میں دہشت گرد حملے کے لیے مجموعی طور پر 7000 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دہشت گردوں نے 2 ٹریکٹر دیوار سے ٹکرائے۔ 4 مارچ کے دہشت گرد حملے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ 14 برقع پوش دہشت گردوں نے بھاری اسلحے کے ساتھ حملہ کیا۔ دہشت گرد کارروائی کے لیے رکشے میں آئے تھے۔
मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज 16 मार्च तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 1 से 2% कमी की जा सकती है। इस वक्त शरह सूद 12% पर, जबकि अफरात ज़र की शरह कम तरीन सतह पर है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नए पार्लिमानी साल का आगाज कल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अवामी फलाह से मुतालिक अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख सकते हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। राना सनाउल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाए, मौशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ही ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और केपी हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया की वज़ाए खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा गजा फलस्तीनियों का है, वहाँ अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी। स्कॉटलैंड में मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर गजा नॉट फॉर सेल लिख दिया। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ्द की मिस्री हुकाम से मुलाकात। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। इसराइल का कहना है जंगबंदी पर बात करने के लिए वफ्द कल दोहा जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता मंगल को दोहा जाएंगे। रफा में इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बायस खाने पीने की अशिया और दवाइयों का बहरान। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया गया। वाशिंगटन की मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत मुसल्लत करना है। अमरीकी दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सदर ट्रंप के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान को मुज़ाकरात के लिए दबाया नहीं जा सकता। बदमाशी करने वाले कुछ मुल्क मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। किसी भी एक सेहतमंद माशरे में अक़लीतें जो हैं महफूज होती हैं, उनके हकूक जो हैं उतने ही होते हैं जितने वहाँ की अक्सरियत के होते हैं। कौमें पहचानी जाती हैं कि उनके अंदर रहने वाले अक़लीती मजहब हो, उसकी टॉलरेंस जो है उसका लेवल क्या है। किसी भी सेहतमंद माशरे में अक़लियतें महफूज होती हैं, इनके हकूक अक्सरियत के बराबर होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे मजहब का बुनियादी जुज़ है कि यहाँ अक़लियतें हंसी खुशी रहें। इसी जज्बे के साथ पंजाब हुकूमत आगे बढ़ रही है। ये तर्ज अमल मुल्क के लिए खुशाइन है। सर हिलाने का वक्त खत्म हो गया। सर जोड़कर काम करने की जरूरत है। 1.5 साल में सख्त फैसले किए जिससे आवाम को परेशानी हुई, लेकिन उन फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। आमदनी बेहतर हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की तमाम यूसीज को रोशन करने के लिए लाइट्स देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मरीम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को बेहतर और नई शक्ल देने का हुक्म। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब को मजदूरों की फलाह के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। विफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा। सिंध के मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर हैं।
वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हमें नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी को भी होगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खालिद हुसैन कहते हैं सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को नुकसान हुआ। रवां साल मुनासिब कीमत पर गंदम की खरीदारी न की गई तो एहतजाज करेंगे। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उस्मान बुज़दार दौर में माली बदउनवानी की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआयना कमेटी को 20 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम ने मुतादिद अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। माली बेज़ाब्तियों पर महकमों के सरबराहान से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। FIA का लाहौर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा। 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 15 शनाख्ती कार्ड और मलेशिया के 2 जाली वीजे, मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड बरामद। गुजरावाला से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग के सरगना गुलाम मुस्तफा को भी धर लिया गया। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है मालियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7, KP के 3 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब ने कराची के वेयर हाउस से बरामद अरबों की अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार दी थी। ज़राए के मुताबिक बरामद अद्वियात ड्राफ्ट से रजिस्टर्ड नहीं है। अद्वियात के पैकेज पर दवासाज कंपनीज की तफसीलात भी दर्ज हैं। 26 फरवरी को कोरंगी वेयर हाउस से बरामद 10 अरब अद्वियात को भारतीय करार दिया गया था। कराची लियारी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वॉर कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप के इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम ने बताया नया आबाद में ऑयल डिपो मालिक से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया और ना देने पर साथियों के हमरा ऑयल डिपो पर फायरिंग की। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी T20 स्क्वाड का कैंप दूसरे रोज LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। वार्म अप ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। और सादा अंदाज, मुनफरिद लहजा, सराइकी जुबान के मारूफ गुलकार पठानी खान को दुनिया से गुजरे 25 बरस बीत गए। उनका गाया आरफाना कलाम उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है।